how are you? Today we discuss the different kind of the questions. Okay, depends on the PMI, right? So today's lecture is very important for you because they are the different kind of questions. Okay, and also interesting. So now let's start. We already complete 60, 70 sums in previous videos, right? Total. So let's start the question. Okay, so just check. Equations. Okay, 18, 1 plus 2 plus 3 plus up to n less than 1 by 8, 2n plus 1 whole square, right? So this one is the inequality like sums. Okay, so let's see. Okay, question number 18. So let's see what is the Pn. So here Pn is given that 1 plus 2 plus 3, okay, plus up to now soon n less than 2n plus 1 whole square divide by 8, right? Okay, so now let's start the questions. Step 1 here. Okay, we shall prove so P1 is true. So put n is equal to 1, so therefore P1, that means the 1 which is less than, put here n, 2 1s are 2 plus 1 3, so 2 plus 1 whole square by 8, so is equal to 9 by 8, right? It is 9 by 8, so 9, okay, by 8, right? So clearly is 1 less than 9 by 8, so clearly P1 is true, right? P1 is true, right? Now Pk is true, Pk be true, right? So put n is equal to k, so therefore Pk means 1 plus 2 plus 3 plus up to now soon n की जगह पे हम लोग k रख देंगे, लेस देन, इक्वल टू नहीं है बच्चों, सो 2k plus 1 whole square and 1 by 8. Now, okay, we shall prove P of k plus 1, okay, be true. So put n is equal to k plus 1, right? So therefore P k plus 1 means 1 plus 2 plus 3 plus up to now soon k compulsory plus k plus 1, right? In the place of k plus 1 less than 2 of into bracket k plus 1 whole square and divide by 8, right? Okay, now step number 3 is very important here. So now we have Pk, so the 1 plus 2 plus 3 plus up to now soon plus k less than 2k plus 1 whole square, right? Whole square by 8 here. So now we add 1 plus 2 plus 3 implies that plus up to now soon k plus 1 add in both the sides, so 2k plus 1 whole square by 8 plus k plus 1, right? क्या क्या बच्चों हमें ए वाला स्टेटमेंट लाना है,
राइट, दिस इक्वल टू दिस, राइट। तो हम लोग ट्राई यहाँ पे करेंगे कि हमें ये मिल जाए। इक्वालिटी होती तो LHS इज इक्वल टू RHS लाते थे, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटीज फॉर्म है, सो दैट्स वाई रीजन। ओके, सो नाउ हियर 1 plus 2 plus 3 plus up to now soon k plus k plus 1 less than split of this here 4k square plus 4k एंड प्लस, वैसे तो हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं क्योंकि पी के में अप्लाई किया था, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस क्या हो गया बच्चों 8k एंड प्लस 8 1 जा 8 LCM था और अपॉन 8। नाउ 1 plus 2 plus 3 plus up to now soon k plus 1 which is less than, ये आपके पास आ गया 4k स्क्वायर बच्चों प्लस 12k, 8 plus 1 9 1 कितना होता है 9 बाय 8, ओके 8। तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, तो 2k plus 3 होल स्क्वायर एंड बाय 8, राइट। तो मैं उसको थोड़ा रिडिवाइड करके 1 plus 2 plus 3 प्लस अप टू नाउ सुन k प्लस 1 लेस देन, देखो 2k प्लस 3 है ना, तो 3 को मैंने पहले प्लस यहाँ पे ले लिया, राइट, प्लस यानी 2k 2 इंटू के, सॉरी यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, ओके। तो एक के ब्रैकेट आगे 2 प्लस 1 हो गया, ओके, होल स्क्वायर एंड विच इज बाय 8, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट आ गया, देखो बराबर ना। सो क्या लिख सकते हैं, सो हियर pk plus 1 is true, right, so pk is true implies that p of k plus 1 is true, right, p a k plus 1 is true, okay, so by pmi pn is true for all n belongs to n। चलो ओके, आगे बढ़ते तो फिर बहुत आसान था, बट इम्पोर्टेंट चीज जो आपने सीखी अभी इनइक्वालिटीज वाली वो मायने रखती है हमारे लिए। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसके बाद वाला 8 9 10 n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3, ओके, डिवीजन मल्टीपल है तो बहुत आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, सीख लेते। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 19, आपका जो pn था वो क्या था, तो क्या आप कह सकते हो n plus 1 and n plus 5 is a multiple of 3, right, okay, so let's start for p1 is true, let p1 be true, okay, for n is equal to 1, so p1 means तो क्या हो जाएगा 1 into 1 plus 1 2 plus into 6 which is equal to 12, okay, कितना है बच्चों 12, so which is a multiple of 3, which is multiple of 3, बराबर है p1 1 into 2 into 6 तो 12 which is a multiple of 2, okay। now pk is true for
n is equal to k. So simple, p of k means step 2 में थोड़ा चेंज आएगा, pk that means the बच्चों क्या लिखोगे, k plus 2 k plus 5 बच्चों, right? k plus 1 k plus 5, okay, is a multiple of 3. कितना है, 3. ओके, ये तो प्रूव ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इज इक्वल टू 3m. ओके, वेयर m बिलोंग्स टू n, राइट? हमने ऐसा कोई नंबर ले लिया जिससे डिविजिबल या मल्टीपल है, इंटू m कर देने का. 51 होता तो 51m लिखते हो. ओके, समझ में आ गया? ओके, चलो स्टेप 3 के लिए. ओके, सो वी शैल प्रूव के pk प्लस 1 be true for n is equal to k plus 1. So p of k plus 1, you here k की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, k plus 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, k plus 1. तो यहाँ पे k plus 1 k की जगह पे k plus 1 है तो k plus 2 and k plus 6 हो गया, which is मल्टीपल ऑफ 3. कितना हो गया, मल्टीपल ऑफ 3. चलो ए हमें लाना है. अब क्या करेंगे देखो, तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा. तो k प्लस 1 k प्लस 2, ओके, एंड k प्लस 6. ध्यान रखना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो ए जो टर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, ए k प्लस 1 k प्लस 2 ऑल मल्टीप्लाई बाय 6, यानी ए वाला और ये सब क्या हो जाएगा, इसको और इसको इसके साथ ले लेंगे बच्चों. तो क्या आ गया, पहले मैंने k लिख दिया इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, राइट? प्लस ये कौन है, 6 इन दोनों के साथ, तो 6 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. अंडरस्टैंड? ओके, अब देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूं, तो k प्लस 1, अब प्लस 2 है ना, उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं k प्लस 5 माइनस 3. बच्चों अल्टीमेटली हुआ तो वही ना, राइट? ओके, तो 6 k प्लस 1 ओके इंटू k प्लस 2, राइट? थोड़ा ध्यान रखना बस ये सिंप्लीफिकेशंस, बाकी आसान है. ओके, ये आइडियाज तो आपको भी आते रहेंगे, डोंट वरी. ओके, कोई चिंता की बात नहीं है इसको सॉल्व करने में. अब देखो फिर से मैं पूरे इसको एक टर्म समझ लेता हूँ और 3 को अलग से, तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, k आ गया, k प्लस 1 और k प्लस 5, राइट? ओके, माइनस 3 k इंटू k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 एंड k प्लस 2. अब आपको इंटेंशन समझ में आ गया, k प्लस 1 k प्लस 5 लाना था हमें. क्यों? ये हमारी pk की वैल्यू है, राइट? किसकी वैल्यू है, pk की. अंडरस्टैंड? याद करो, ये रहा ऊपर देखो, k प्लस 1 k प्लस 1 3m है ना, इसीलिए तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 3m. क्या रखेंगे, 3m, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते. तो बच्चों तो इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिख दिया 3m प्लस ए वाली टर्म्स को अब मैं पहले लिख रहा हूँ 6 k प्लस 1 बिकॉज you understand easily, so that's why nothing reasons, into k plus 1. Here 3m plus and 3, what is the common, 3 into k plus 1 is common, so remaining terms are 2 into k plus 2 minus only the k is remaining. You split this, so 3m plus 3k plus 1 into 2k plus 4 minus k, 2k plus 4 minus k. So this one is equal to 3m plus 3k plus 1 into k plus 4. So simple, 3 is common in whole,
तो m प्लस k प्लस 1 इंटू के प्लस 4, राइट। तो 3 का आगे बच्चों क्या आ गया, आगे 3 आ गया तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया 12, मतलब 3 4 जा 12, तो 3 तो हुआ ही ना, वो इज अ फैक्टर, तो हो गया। सो विच इज multiple of 3, right? So simple बच्चों, pk is true implies that p of k plus 1 is true. So by PMI, okay, Pn is true, okay, for all n belongs to n। चलो आसान, ओके। तो ए वाला जो स्टेप था ना, उसको आप अलग तरीके से भी गिन सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, बट एक रास्ता आपको मिलना चाहिए सॉल्व करने के लिए। यू फाइंड द वे, ओके, टू इजी एंड देन सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द n other sums. The sum 1 is 20, 10 raised to 2n minus 1 plus 1, 10 raised to 2n minus 1 plus 1, which is divisible by 11. Okay. So question number 20. Here p of n. Okay. तो क्या था, 10 raised to 2n minus 1 plus 1 is डिविजिबल हो या मल्टीपल हो, मल्टीपल बाय 11, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सो p1 इज ट्रू, ओके, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे पहले तो p1 बच्चों, थोड़ा अच्छा देते हैं। चलो p1 मीन्स 10 रेज टू 2 minus 1 plus 1, सो क्या आएगा, 10 plus 1 is equal to 11। चलो विच इज डिविजिबल बाय 11, राइट। सो आप लिख सकते हो, ओके। तो p1 इज ट्रू हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। pk क्या सिखाया था, pk तो pk तो होता ही है। सो pk इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू k। सो p ऑफ k मीन्स क्या होगा, 10 रेज टू 2k माइनस 1 प्लस 1, ओके, इज डिविजिबल बाय 11, राइट। तो 11 आया तो हम लोग लिखेंगे बच्चों के 10 रेज टू 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या सिखाया था, 11m, वेयर m बिलोंग्स टू, ओके, n नेचुरल नंबर्स। ओके, अब देखो इसको इस साइड पे ला दो, यानी आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1, राइट। इसको बहुत याद रख लेना, ये हमारे लिए काम का स्टेप्स हो गए अब, ओके। इसका बेनिफिट हम लोग सॉल्व करने में लेंगे, इसीलिए तो लाए, ओके, पीके की वैल्यू। आगे वाले इक्वालिटी वाले सब में क्लियरली मिल जाता था, इसीलिए हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या प्रूव करना है स्टेप 3 के अंदर, ओके। सो हियर पीके प्लस 1 बी ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. So p of k plus 1 क्या आएगा बच्चों, p k plus 1, that means the 10 raised to 2, k की जगह पे आप लिखोगे k plus 1, ऊपर तो माइनस 1 था ही, ओके, एंड प्लस 1 कॉमा इज डिविजिबल बाय 11। सो अब प्रूव करेंगे बच्चों। सो 10 रेज टू 2 ब्रैकेट
k प्लस 1 माइनस 1 n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो कि कैसे, तो कि 10 रेज टू 2k प्लस 2 माइनस 1, ओके, प्लस 2 एंड माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू, सॉरी 10 है, ओके, सो सॉरी 10 रेज टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2k माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1, राइट, पावर अलग कर दिया, माइनस 1 को आगे लाके, एक इसकी वैल्यू हो गई, राइट, ये वैल्यू देखो pk की हो गई, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो 10 का स्क्वायर तो कितना होगा 100 इंटू ब्रैकेट में 11m माइनस 1 आ गया एंड प्लस 1 तो अलग ही है, स्प्लिट कर दो बच्चों, मैं 100 के अंदर 11 को बाहर ले रहा हूँ तो 100m हो गया, ब्रैकेट खोल 100 इंटू 1, तो 100 एंड प्लस 1, ओके, रास्ता अपने आप ही मिल जाएगा बट फोकस रखना पड़ेगा एंड तक। सो 11 ब्रैकेट 100m माइनस 100 माइनस 1 कितना हो गया 99, सो इज इक्वल टू 11 कॉमन इनटू ब्रैकेट 100m माइनस 9, राइट, तो हो गया बच्चों 11, सो विच इज, क्या लिखोगे, सो बच्चों विच इज डिविजिबल by 11, so pk be true implies that pk plus 1 is true, so by pmi, okay, p of n be a true for all n belongs to n। चलो मेथड समझ में आ गई ये नई वाली, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 21, ओके, लेट्स सी 21, x raised to 2n y raised to 2n is divisible by x plus y, divisible by, so our pn x raised to 2n minus y raised to 2n is divisible by x plus y, चलो, राइट, तो स्टार्ट हियर फॉर n is equal to 1, so p1 that means x square minus y square हो गया, so imply that x minus y x plus y, right, so which is divisible by 11, तो ये तो 11 से डिविजिबल है, सो क्या हो गया p1 इज ट्रू, मान लिया मैंने, मतलब है, चलो pk be true for n is equal to k, so p of k means x raised to 2k minus y raised to 2k is divisible by 11, so x, sorry, not 11, here both x plus y, तो क्या करेंगे माइनस y रेस्ट टू 2k इज इक्वल टू 11 x प्लस y m, तो m इंटू एक्स प्लस वाई। चलो अब स्टेप नंबर 3 बच्चों, सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू b, ओके, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर अब क्या करना चाहिए हमें इसके अंदर,
राइट। तो हमारे पास क्या था, एक्स रेज टू टू पी के प्लस वन, के प्लस वन माइनस वाई रेज टू टू के प्लस वन इज divisible by x प्लस वाई, राइट। कोई बात नहीं, चलो एस टू के प्लस टू माइनस वाई टू के प्लस टू। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई ऐसा स्टेप्स ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। टू के हमने लिया है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस एक्स रेज टू टू के ओके इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू टू के इंटू वाई स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। क्या कर दिया, ऐड करके सब्ट्रैक्ट। अब देखो ग्रुप बनाते हैं, एक्स रेज टू, बस इस सम का यही मजा है, राइट। तो टू रेज टू के इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस इसको साथ मिला दो, एक्स रेज टू टू के इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस ये वाला एक्स रेज टू टू के इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई रेज टू टू के इंटू वाई स्क्वायर, बराबर है। इसको वाई प्लस टू के प्लस टू था ना, वाई स्क्वायर अलग हो गया, एक्सपोनेंशियल रूल्स। तो फर्स्ट इन दो टर्म्स में से बच्चों, और इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, ओके। एक्स रेज टू टू के कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम्स। प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो रिमेनिंग रम टू के माइनस वाई टू के वाई रेज टू टू के। ये क्या आ गया आपका, पी के आ गया, देखो यार, एक्स रेज टू के वाई रेज टू के, तो एम एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, एक्स रेज टू टू के, इसके दो फैक्टर्स क्या आएंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, उसकी जगह पे एम आया इंटू क्या गया, एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन, क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स प्लस वाई, जिसका मल्टीपल या डिवीजन लाना था, तो एक्स रेज टू टू के राइट इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एम वाई स्क्वायर, ओके, विच इज ओके डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, तो हो गया बच्चों। सो पी के प्लस वन इज ट्रू, राइट। सो बाय पी एम आई P of n is true, okay, for all n belongs to n। चलो क्लियर, आसान हो गया, ओके। नाउ अब नंबर 22, ओके। तो 22 में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे 3 रेज टू 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, 3 रेज टू 2n plus 2, 3 raised to 2n plus 2 minus 8 and minus 9 is divisible by 8, okay। So 3 raised to 2n plus 2, sum number 22 क्या था, sum number 22 p of n 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 which is divisible by कौन सा नंबर था, डिविजिबल बाय ए 8, is divisible by 8, ओके। चलो, सो P1 be true for n is equal to 1, P1, right। So 3 raised to 4
minus 8 minus 9. So 3 raised to 4, 3 3 are 9. 81 minus 17 is equal to 64, which is divisible by 8, right? So आप लिख सकते हो P1 is true, right? यहाँ पे तो PK की बात आ गई, so PK भी true for n is equal to k. So P of k means क्या है, 3 raised to 2k plus 2, 8k minus 9 is divisible by 8. तो क्या करना चाहिए, 3 raised to 2k plus 2 minus 8k minus 9 is equal to क्या रख दोगे, 8m, राइट? m belongs to n. अब इसको सिंपल फॉर्म में ला देते हैं, तो 2k plus 2 is equal to 8m plus 8k n plus 9. मैंने इस साइड पे ला दिया, इसकी वैल्यू रखने में आसानी है बस, और किसी लिए नहीं. अब pk plus 1 be true for n is equal to k plus 1 हमें लाना है. तो p of k plus 1 मीन्स क्या आ गया, तो 3 raised to 2, k की जगह k plus 1 plus 2 minus 8, k की जगह पे k plus 1 and minus 9 is divisible by 8, राइट? तो अब इसको प्रूव करते हैं. 3 raised to 2k plus 2 into 2 मतलब plus 2 minus 8 k plus 1 minus 9. इसका काम देखते हैं. तो फिर 3 बच्चों, इसकी तो वैल्यू पता है ना, तो 3 स्क्वायर आगे लिख दो, और ये तो आगे ऊपर वैल्यू आपने ढूंढी कितना है, तो कि 8m plus 8k plus 9 minus 8k minus 8 and minus 9. चलो 3 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 9, राइट ना? तो आप क्या करोगे, 9 है ना, तो 9 इंटू 8m अभी एज इट इज रखोगे. उसके बाद ये 9 है, 3 स्क्वायर 9, सो 9 नहीं प्लस 72k प्लस 9 9 81 माइनस 8k माइनस 17. अब देखो 8 आगे आ गया, इंटू 9m प्लस 72 माइनस 8, तो सीधी बात है माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 64. कितना हो जाएगा, 64k. 81 माइनस, तो ये भी कितना हो गया, 64, राइट? ओके. अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ओके 8 इज कॉमन, सो 9m प्लस 8k एंड प्लस 8 आ गया, आगे 8, सो विच इज डिविजिबल बाय 8. तो काम खत्म. सो देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू हो गया. अंडरस्टैंड, राइट? p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. सो बाय PMI Pn is true. Okay, P1 is true for all n belongs to n, right? ऐसा, okay. Now देखो, अब 41 raised to n 49 is a multiple of 27. ये तो आप खुद कर सकते हो. ओके, क्यों? क्योंकि आपने 20, 21, 22 देखा था, ठीक उसी तरह है. ओके, तो प्लीज दिस वन इज योर सेल्फ. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, another inequality sum. So more practicing for this kind of sum. 2n plus 7 less than n plus 3 square.
Okay, let's see. 2n plus 7, question number 24. Pn 2n plus 7, okay, less than n plus क्या था, n plus 3 square, n plus 3 whole square, n plus 3 whole square. चलो बच्चों, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1. सो p1 क्या हो जाएगा, 2n plus 1. So 2 plus 7 which is less than 4 square, right? So here clearly a 9 which is less than 16. So p1 is true. चलो क्लियर. नाउ pk means स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हो आप, 2k plus 7 which is less than k plus 3 whole square. Now so we shall prove n is equal to k plus 1 for, okay, k pk p of k plus 1 is true. So p of k plus 1, that means 2 of into bracket k plus 1 plus 7 which is less than here k of k plus 1 plus 3 whole square, right? Okay, now चलो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इन शॉर्ट में हमें ए वाली चीज को दिखाना है, राइट? ओके, अब देखो ऐसी चीज तो ठीक है, आप इसको तो मुझे लिखना है मान लो ऐसे. सो मैं इसको 2k कर देता हूँ बच्चों, प्लस 2 प्लस 7, तो प्लस 7 पहले, ओके, लेस देन 2. ओके, आपके पास यहाँ पे क्या था, ये तो k, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू k प्लस, चलेगा वैसे तो k प्लस 4 स्क्वायर है. चलो ये 2 आ गया, इनटू क्या आ गया, k लेस देन k प्लस 3 स्क्वायर, 2k प्लस 7. ओके, इस मिस्टेक्स, ओके, ये प्लस 2 है, क्या हो गया बच्चों, ये वाला प्लस 2 मैंने एज इट इज रखा. चलो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2k प्लस 7 प्लस 2 लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर. ओके, वही क्या वही लिखा है यहाँ पे, सॉरी k प्लस 4 ये वाला. ओके, तो यहाँ पे आप k प्लस 3 लिख सकते हो, यहाँ पे आपका k प्लस 4, राइट? ओके, तो बेसिकली इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, चलो बताओ इसको. ओके, कन्वर्ट वाला पेज है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बताओ, है तो इंटरेस्टिंग, खाली कन्वर्ट करना है इसको. शॉर्ट में बताओ, फास्टली, वो भी बोलो फास्ट. क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, एक ही स्टेप्स में पता चल जाए ऐसा कि आपके पास तो p क्या है, pn 2 है ना, प्लस 7, दोनों तरफ क्या होगा, प्लस 2. इसका सिंप्लीफिकेशन आया, मैं इसको थोड़ा कट करके, ओरिजिनल कितना था, 4 है बच्चों, k प्लस 4 स्क्वायर. चलो ए तो है, अब हम मैंने एसिटी छोड़ दिया. अब आपके पास pk क्या था, तो बाई pk हमारा क्या था, 2k प्लस 7 बच्चों, कितना था, 2k प्लस 7 विच इज लेस देन k प्लस 3 स्क्वायर. कोई बात नहीं, चलो दोनों तरफ ऊपर लाना है ना, तो दोनों तरफ प्लस 2 ऐड कर दो. तो मैं यहाँ पे करूंगा 2k प्लस 7, ध्यान से, राइट? क्या कर दिया मैंने, प्लस 2 ऐड कर दिया, तो लेस देन इधर क्या आ जाएगा, k प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 2 आ जाएगा. अब आप करोगे यहाँ पे 2k प्लस 7 प्लस 2 लेस देन इस तरफ कितना आ गया, k प्लस 3 बाई 2, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा हमें अल्टीमेटली, कि 2k प्लस सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो कोई भी आ सकता है इसके अंदर, नॉर्मली मैंने डाल दिया. चलो, तो ए वैल्यू जो है ना, तो 2k प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट? 2 प्लस k दिस वन इज अ होल स्क्वायर, हमने pk का यूज किया, राइट? अब 2k प्लस 7 था, वो मैंने एज इट इज ही रखा ना इसको, तो 2k प्लस 1 प्लस 7, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, 2k, हमने दोनों तरफ प्लस 2 ऐड कर दिया, तो ये 2 कॉमन निकाल दो,
तो आपके पास क्या गया k प्लस 1, और मैं 7 को साइड में लिख देता हूँ, लेस देन इस तरफ क्या होगा, स्प्लिट कर दो, तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2 आ गया, फिर से 2 ऑफ k प्लस 1 प्लस 7 विच इज लेस देन, चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड कर दो, तो मैंने 2k प्लस 1 7 क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k, ओके 9 प्लस 1 कितना होता है 11, ओके प्लस 11 विच इज लेस देन क्या हो गया k स्क्वायर, मैं k प्लस 4 होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ देखना, सो k स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए 8k होना चाहिए, राइट, 8k एंड प्लस 16 कितना हो जाएगा, इनसे तो छोटा ही हुआ ये वाला, ओके चलो तो अल्टीमेटली प्रूव हो गया। तो ए किसका है, मैंने इसको ऐड मान लो ए इसकी जगह पे लिख दिया, सो ए विच इज लेस देन, इसको इक्वल टू दिखाना पड़ेगा, सो राइट, सो 2 into bracket k plus 1 plus 7 which is less than k plus 4 whole square, okay, so therefore if दो मेथड से आप सॉल्व भी कर सकते हो, so p of k plus 1 is true, so okay by PMI Pn is true, right, for or n belongs to n। चलो क्लियर बच्चों, ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे दी एंड करते हैं, हमारा वीडियो आया समझ में, ओके, तो ऑलमोस्ट हमने एक्सरसाइज डन कर दी, क्लियर। तो इसके अंदर जो मार्क्स है 1 मार्क्स क्वेश्चन और ऐसे बड़े क्वेश्चन से आते हैं, तो इसको ऐसे ही फॉलो करना है, understand, okay, so thank you for spending time for watching video till then and bye bye, see you।